देखिए आज का टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको पहले ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली रिड्यूसिबल से यहाँ क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए लाइक दिस, नंबर वन कि सोल्व 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 and 1/x plus 1/2y is equal to 8, where x is not equal to 0 and y is also not equal to 0। अब आप देखें ये लीनियर तो नहीं है, बट हम इसको लीनियर कैसे बनाएंगे, क्योंकि 1/x और 1/y की फॉर्म में लीनियर तो नहीं होनी। तो हमने क्या मान लिया कि लेट 1/x को हमने मान लिया u एंड 1/y को मान लिया हमने v। नाउ इफ यू सी इट, इट इज टर्निंग आउट टू बी u/2 minus v is equal to -1 and u plus v/2 is equal to 8। Is that okay beta? Now it is linear in u and v, so you can say that now above equations are linear in u and v। तो अब इसको u और v के लिए हम सोल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वी विल बी हैविंग u minus 2v is equal to -2 and the second one will become 2u plus v is equal to 16। So let us solve them। तो u minus 2v is equal to -2 है और 2u plus v is equal to 16। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2u minus 4v is equal to -4। Now see what we are having, minus plus plus, so we have 5v is equal to 20, so v is equal to 4। तो v 4 आया है तो अब u भी निकाल लेते हैं। u minus 2v is equal to -2, so u minus 8 is equal to -2, so u is equal to 6 आ जाएगा बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. But u is equal to 1/x, which is equal to 6, so we can say that your x is 1/6 because we have to solve for x and y na ultimately, and v is equal to 1/y, Yes, sir. which is equal to 4, so you can say that your y is 1/4। so your final solution is x is equal to 1/6 and y equal to 1/4। I hope it is clear to you। हाँ जी, Yes, sir. so please take the screenshot of it। One more problem of this type I want to discuss with you, the seat। Okay, suppose we have the problem solve 1/2 into 2x plus 3y plus 12/7 into 3x minus 2y is equal to 1/2 and 7/2x plus 3y plus 4/3x minus 2y is equal to 2। So we have to solve this, and the condition is 2x plus 3y is not equal to 0 and 3x minus 2y is also non-zero। Obviously क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो clearly it is not linear, so again we'll use the transformation। so what we are using, let 1/2x plus 3y को पूरे को हमने u मान लिया and 1/3
3x माइनस 2y को v मान लिया. Now see what is the impact of it. It is u by 2 plus 12 by 17 of v is equal to 1 by 2. Is that okay beta? Okay. Now let us simplify it. Okay. यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा. तो 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 1 by 2. तो दिस विल इम्प्लाई 7u प्लस 24v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7. प्लीज टेल मी. Yes. नाउ लेट अस डू द सेम थिंग इन द सेकंड इक्वेशन. अगर सेकंड इक्वेशन में भी हम ऐसा करते तो वी विल बी हैविंग 7u plus 4v is equal to 2. So now we have two equations, that is 7u plus 4v is equal to 2. So we can subtract them directly beta. So now let us subtract them. This is minus minus minus. So we have 20v is equal to how much, 5. So your v is 1 by 4. Now since we have calculated v, so we'll use in this equation 7u into 1 by 4 of 4 is equal to 2. So 7u is turning out to be कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 and Nice. u is equal to 1 by 7. Now हमने क्या यूज़ किया था, मैं just try to understand it. Since your u was equal to 1 upon 2x plus 3y which is equal to 1 by 7. Is that okay? So we can write this as 2x plus 3y is equal to 7. Let this equation be third one. And our v was equal to how much? V was equal to 1 upon 3x minus 2y which is equal to 1 by 4. So this will imply 3x minus 2y is equal to 4. Now we will solve 3 and 4 to get the equation of x and y. Solving 3 and 4. We have 2x plus 3y is equal to 7. 3x minus 2y is equal to 4. तो पहली वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मान लीजिए 2 से कर लीजिएगा पूरी को. सो व्हाट विल हैपन, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21. 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट. माइनस प्लस माइनस. नाउ सी फ्रॉम दिस वी आर ऑब्टेनिंग 13y is equal to 13. Is that okay beta? So your y is 1. Now when y is 1, so you have the equation 2x plus 3y में हमने y का वैल्यू डाल दिया. So 2x is equal to 4. This will imply your x is 2. Clear है बेटा solution? Please reply. Yes, sir. Okay, so you may take the screenshot of this problem. पहले यहाँ तक का ले लीजिए. डन बेटा? Yes, sir. Okay. Another type of problem that I want to discuss with you. Let's see it. ये भी ले लीजिए. डन बेटा? हो गया बेटा? Yes, sir. Okay. Problem number 3. Suppose we are asked to solve 2 into 2u plus v is equal to 7 into uv. 3 into u plus 3v is equal to 11 uv. तो हमने देखा क्लियरली लीनियर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आराम से समझिएगा. और यहाँ पर सी
if u is equal to 0, if I take u equal to 0, then you can say that if I put in either of the equations, suppose I put it in this first one, आराम से समझिएगा please. So 0 plus v is equal to 0, and this will imply v is also equal to 0. Are you getting it? Please tell me. So you can say that one of the solution this equation has, so if u is equal to 0, then it will imply v is equal to 0, and v is equal to 0 will imply u equal to 0. एक तो solution इसका 0 0 है confirm. Please tell me. Yes, sir. So without loss of generality, I should assume कि what will happen if u and v are non-zero. If u is non-zero and v is non-zero, so if both are non-zero, then the divisibility will exist. तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ uv से डिवाइड कर दिया. तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एक मिनट बेटा, ये भी 3 ही है यहाँ पर 3. ओके, सी इफ आई डू दिस, पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ही लिख लीजिए. चलो कोई नहीं, एक साथ कर लेते हैं. 6u अपॉन यू वी, मैं यू वी से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, ध्यान से देख लीजिएगा. अपॉन यू वी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा बेटा. सो वी कैन राइट दिस एज 6 बाई वी प्लस 3 बाई यू इज इक्वल टू 7. प्लीज टेल मी. पहली इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगी बेटा. Yes, sir. नाउ लेट अस डू विद द सेकंड वन. 3u अपॉन v, 9v अपॉन v is equal to 11. Now it will be nothing but 3 by v plus 9 by u is equal to 11. So I can say that these are my equation 1 and 2. Now this is 3 and 4. Now can we reduce 3 and 4 to the linear, because it becomes the first case. So if I assume that let 1 by u is equal to x and 1 by v is equal to y. Now this equation reduces to 3x plus 6y is equal to 7 and 9x plus 3y is equal to 11. Is that okay beta? Please tell me. Yes, sir. Now what I will do, instead of cross multiplying it, see what I am going to do it. पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो बस. I am doing this. Now what will happen? 9x plus 18y is equal to 21. Is that okay beta? Yes, sir. Minus minus minus. Now what will happen? यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 15y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से बेटा? -10. माइनस 10. So your y will be equal to 10 by 15. कितना बन जाएगा? 2 by 3. Please tell me. Yes, sir. Now y is 2 by 3, so we'll use in one of the equation. 3x, इसमें आप डाल दीजिए y की वैल्यू. 2 by 3 is equal to 7. ये 2 पे जाएगा तो 3x is equal to 3. x का वैल्यू 1 आ गया. So now 1 by u is equal to x, which is equal to 1. So you can say that u is 1. Clear है बेटा? And 1 by v was equal to y, which is equal to 2 by 3. So this will imply your v is 3 by 2. This is the solution. Clear है बेटा? Yes, sir. So please take the screenshot of it. तो अगर आप देखेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन आए. आपने देखें कौन कौन से दो सॉल्यूशन आए? एक तो u और v दोनों जीरो है और दूसरा ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. नाउ एक स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसमें घबराना मत, क्योंकि उसमें 3 इक्वेशन होंगी तो कैसे सोल्व करेंगे, और 3 वेरिएबल उसमें. तो देखिए कैसे करेंगे. मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, आराम से समझिएगा. कहता सोल्व 2x minus y is equal to 4 and y minus z is equal to 6 and x minus z is equal to
10. आपने ये क्या देखा? इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशन. इज दैट ओके? Yes, sir. तो इसमें हम क्या करते हैं, आराम से समझना. पहले कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए. आपको दिख रहा है कि 3 इक्वेशन है, 1 2 3. 2 और 3 को सोल्व किया जा सकता है? प्लीज टेल मी. Yes, sir. सॉल्विंग 2 and 3. सो y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 है और x माइनस जेड 10 है. तो क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें. क्या आएगा जरा ध्यान से देखना. प्लीज टेल मी व्हाट यू विल गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग देम. माइनस प्लस माइनस. So you will be having y minus x is equal to -4. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. So now we can solve this equation 4 and 1. ये linear equation बन गई. Solving 1 and 4. That is 2x minus y is equal to -4 and y minus x is equal to, एक मिनट, सॉरी वो +4 है बेटा, and y minus x is equal to -4. What I will do, add them. ऐड कर ले इनको. ऐसे आएगा ऐड करके, ये 0 आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया? 0. प्लीज टेल मी. अब x 0 आ गया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 था, तो x को यहाँ 0 डाल दीजिए, तो y कितना आ गया? -4. क्लियर है बेटा? और y आ गया तो किसी एक इक्वेशन में आपके पास y माइनस जेड 6 के बराबर था, तो -4 माइनस जेड इज इक्वल टू 6, तो z कितना आ जाएगा? -10. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इस टाइप की इक्वेशन से घबराना नहीं, बहुत आसान होता है. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. ओके. चलिए एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखते हैं. लेट अस सी हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. समझिएगा. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. द क्वेश्चन इज solve x plus 2y plus z is equal to 7 and x plus 3z is equal to 11 and 2x minus 3y is equal to 1. Can you tell me how we'll solve it? देखिए सिंपल तरीका क्या है, आप इक्वेशन 2 से z का वैल्यू निकाल के 1 में रख दीजिए. देखिए हमने क्या किया, यूजिंग 2, 3z इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, तो z आपके पास आ गया 11/3 माइनस x/3. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. इसको 1 में यूज कर लीजिए. यूज इन 1, तो x प्लस 2y प्लस 11/3 माइनस x/3 is equal to 7. So we will be having 3x plus 6y plus 11 minus x is equal to 21. Is that okay? Please reply. Yes, sir. So we will be having 2x plus 6y. 11 को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 10. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x plus 3y is equal to 5. Please tell me. Yes, sir. और हमारा इक्वेशन था थर्ड वाला, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रहने देते तो ज़्यादा अच्छा. चलो वी कंसिडर 2x प्लस 6y इक्वल टू 10 ओनली. तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा. तो कितना आएगा? -9y इज इक्वल टू -9. तो y कितना आ गया? 1 आ गया. अब y 1 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो. 2x इज इक्वल टू 4. x कितना आ गया? 2 आ गया. अब x आ गया तो z भी आएगा. ये रहा यहाँ पर x हमारा कितना आया है? 2 आया है, तो 2/3 करेंगे.
तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3, दैट इज 3। इज दैट ओके? Yes, sir. तो ऐसे इक्वेशंस को घबराने एलिमिनेट करके 2 में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। Yes, sir. नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। उसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। उसका क्वेश्चन जो पिछले साल तक तो सिलेबस में नहीं था, बट अब के साल जो है, अब हो ना हो, अभी तक तो कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, सीबीएसई की तरफ से नई नोटिफिकेशन कुछ आई नहीं है बेटा, बट वी हैव टू डिस्कस दैट बिकॉज इस पे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे, तो आई हैव टू डिस्कस। डू यू नो व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? हैव यू हर्ड द वर्ड? प्लीज टेल मी। No, sir. ओके, चलिए पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आपको बताएंगे, आराम से समझिएगा। जस्ट लेट अस डिस्कस दैट। देखिए समझिएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा, ये आपकी रिवर है, दिस इज रिवर, और रिवर में वाटर फ्लो होता है। मान लीजिए स्ट्रीम जो है ऐसे इस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। द स्ट्रीम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड सपोज देयर इज अ बोट इन द स्ट्रीम। सपोज करिए यहाँ कोई बोट है, लाइक दिस, सम पर्सन इज and suppose this boat is also moving in the same direction. Are you getting it? तो ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इज दैट ओके? Yes, sir. अब यहाँ अगर मैं ऐसा कर लूँ कि हमने मान लिया बोट की जो स्पीड है वो है u km/h। आर यू गेटिंग इट? और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है v km/h। यह है स्ट्रीम की स्पीड और यह है बोट की। आर यू गेटिंग इट? तो जो स्पीड आएगी अपस्ट्रीम में वो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। आप खुद बताइए, अगर हम फ्लो की तरफ ही अगर बोट ट्रेवल कर रही है तो दीज टू स्पीड विल ऐड ऑन। Yes, sir. तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी u + v km/h। इज दैट ओके? Yes, sir. अब नाउ लेट अस कंसिडर अनदर डायग्राम। सपोज we have again the river, suppose again the river is that is stream is flowing in this particular direction like this, and suppose your boat is moving in this particular opposite direction. Are you getting it? Please tell me. Yes, So this is the condition of upstream. Is that okay? That is moving opposite to the stream is upstream. Again if you see that, because resistance तो लगेगा ना उसके opposite direction में move करने के लिए। Are you getting it? yes, sir. अगर मान लीजिए वही स्ट्रीम की स्पीड अगर मैं लेके चल रहा हूँ, बोट की स्ट्रीम तो हमारी वही है u km/h। आर यू गेटिंग इट? और मान लीजिए स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है v km/h। तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड आएगी, स्पीड अपस्ट्रीम में क्या आएगी? ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस उसको झेलना पड़ेगा, दैट इज u - v km/h। इज दैट ओके? Yes, sir. तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे मैं कुछ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सो दैट आपको एक वर्ड प्रॉब्लम है समझ में आ जाएगी। समझिएगा क्या है। डन बेटा? Yes, sir. समझिए क्वेश्चन ऐसे है, प्रॉब्लम आई एम राइटिंग द प्रॉब्लम। ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर upstream and 36 kilometer
downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझ लीजिएगा. तो सबसे पहले तो जो अननोन है वो तो मानने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो हमने सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट किया. लेट द स्पीड ऑफ द बोट in still water be x kilometer per hour. Is that okay? And speed of stream be y kilometer per hour. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अब मुझे बताइए स्पीड अपस्ट्रीम की क्या आएगी. अपस्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. Yes, sir. ओके. स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या आएगी. X plus Y. किलोमीटर पर आवर. इज दैट ओके. नाउ आप जानते हैं स्पीड किसके बराबर होती है. डिस्टेंस अपॉन टाइम. प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके, तो फिर टाइम किसके बराबर आएगा. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इज दैट ओके. Yes, sir. अब एक बात बताइए, पहली लाइन में लिखा हुआ 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर. तो आप एक बात बताइए, टाइम टेकन कितना आ जाएगा. टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम. बताएंगे जरा. 32 अपॉन एक्स माइनस वाई. प्लीज टेल मी. क्योंकि स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, एक्स माइनस वाई. प्लीज टेल मी. Yes, sir. सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, वो कितना आएगा. बताइए बेटा. So 36 upon X plus Y. ये आवर्स. लेकिन एक बात बताइए, एज पर द क्वेश्चन जो टोटल जर्नी कितनी लगी उसमें 7 आवर. Yes, sir. टोटल टाइम ऑफ जर्नी is 7 hour. So we can write 32 upon x minus y plus 36 upon x plus y is equal to 7. Is that okay? Yes, sir. Okay. अब अगर सिमिलरली मैं दूसरे वाले पार्ट को करूं तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया. उसने 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम किया है और 48 डाउनस्ट्रीम. तो सिमिलरली आई कैन से दैट आई कैन राइट दिस एज 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई. और टोटल जर्नी 9 आवर्स की थी. प्लीज टेल मी. रिप्लाई करो बेटा. Yes, sir. क्लियर है, आ रहा हो. हाँ जी. Yes, sir. अब ये इक्वेशन क्या बन गई, रिड्यूसिबल टू योर लीनियर इक्वेशन. सो हाउ यू विल डू इट. लेट 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon x plus y is equal to v. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. तो Yes, sir.
32u 36v is equal to 7, and what will be your another equation? 48u and plus, sorry, 40u 40u plus 48v is equal to 9. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Now we have to solve for u and v. How you will solve it? There is only way that we have to multiply it. Are you getting it? Yes, sir. इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 32 से करो, जरा कितना आएगा जरा मुझे बताइए. जस्ट डू Sir, द 1280u. कितना आएगा ये? 1280u. 1218. यस, 1280u. अब 36 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा? इट इज 144. 1440. इज दैट ओके? Yes, sir. यहाँ पे भी 1280u प्लस अब आप करिए 48 मल्टीप्लाई बाय 32. कितना बनेगा बेटा? 1920. नहीं बेटा, 1536 बन रहा है, ध्यान से देखो. 32 इंटू 9 कितना बनेगा? 288. नाउ लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट. कितना आएगा सब्ट्रैक्ट होके भाई, बताइए जरा. -96 आएगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके, यहाँ से कितना आएगा? -8. तो v कितना आ जाएगा? 1/12. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो 32u प्लस 36/12 इज इक्वल टू 7. तो 32u प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 7. तो u आ जाएगा आपका 1/8. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो 1/x minus y is equal to 1/8. तो this will imply x minus y is equal to 8 and 1/x plus y is equal to 1/12. So this will imply x plus y is equal to 12. Now we have to solve for x and y. ऐड कर ले बेटा इसको. तो x आ गया 10. तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8. तो y आ गया 2. आ गया बेटा? ये बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट. Yes, sir. और ये स्ट्रीम की है. क्लियर है? Yes, sir. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉब्लम का भी और इसका भी. पहले 2 पार्ट्स में ले लीजिए, पहले यहाँ तक ले लीजिए. डन? Yes, sir. अब इससे नीचे का ले लीजिए. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो बेटा अब एक्सरसाइज अगली वाली ट्राई कर सकते हो. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट. क्लियर है? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो अब आप लास्ट